Namaste. This is Rajesh Kadam, relationship coach. One of my patient's wife, who is a teacher, invited me to give a lecture to her kids, to her students who are between 10 and 14. And she was very kind enough to allow me to choose the topic. I asked the children who was their hero. And while discussing with them, I myself became a kid. Let's continue. And yes, we are giving a free giveaway. So please watch the video till the end. Who is your favorite hero? Shah Rukh Khan. Talia. Who is your favorite hero? Varun Dhawan. No one. Ajay Devgan. Wow. Shah Rukh Khan. नो वन. ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जीवन में एक हीरो तो होना ही चाहिए. यू कैन ऑल्सो आस्क मी. मेरे अनंत, यू नो हिम? नहीं ना, बिकॉज इट इज ऑब्वियस. हिज नेम इज अनंत अमृत कदम. ही इज माई फादर एंड ही इज नो मोर नाउ, बट बिकॉज ही डिड एवरीथिंग टू मेक मी वॉट एवर आई एम टूडे. बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे खाना खिलाया, इंस्पिरेशन दिया, और जो मेरे अंदर जो है, जो सबको शायद अच्छा लगता है, वो है कैरेक्टर. तो ही गेव मी अ गुड कैरेक्टर, ऐसे लोग कहते हैं. देन ही ऑल्सो गेव मी कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस कैसा? तो पंचकोशी कॉम्पिटेंस. फिजिकली आई एम फिट, देन ऑल्सो मेंटली आई एम वेरी अलर्ट, and I am also sensitive. But more than that, he has given me intelligence, how to see the world with a divine perspective. So that is what he gave me, and I love him for that. That ऐसा boon अगर हमें मिले, to see the world from a perspective with which we will become happy, that is something, you know. So therefore, in our life, if we can earn these three things, you will become a complete person. The first is character. Second is competence. And the third is compassion. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में. अगर ये बस तीन ही याद रखो. मुझे कैरेक्टर. सो व्हाट इज कैरेक्टर? लेट अस अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स वेरी नाइसली. ओके, what is character? जैसे मैंने कहा, I am not going to give lectures. Let us discuss. What do you understand by character? मतलब I am not expecting a perfect answer. So character is something which involves the values by which we live in this world, the principles by which we live in this world, है ना? जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्य. कुछ मूल्यों पर हम जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रभु श्री राम, ही हैड अ वेरी इफल्जेंट कैरेक्टर, इजंट इट? या सो ये जो कैरेक्टर हम जो मूवीज में भी देखते हैं, आजकल हीरोज के भी कैरेक्टर अच्छे नहीं दिखते हैं, है ना? सो व्हाट इज दैट कैरेक्टर? हाउ वी सी the other person as. That is one of the parameters. What habits I have. Okay, तो कुछ लोगों के habits ऐसे होते हैं, and he is a hero, right? आजकल बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना हम. So such people, they are smoking cigarettes and they drinking alcohol and disobeying the teachers, teasing teachers. What else? अभी कौन सा था वो मूवी? 3 Idiots. Really, they were idiots. In which he is doing susu in front of the office of his principal. देखा है ना? सबने देखा है. And they are heroes in the movie. And we clap for them. And we whistle for them. Wow! So this is what, of course it's a good movie. It also speaks about good values. वो क्या कहते हैं उस मूवी में? कितने लोगों ने देखा है?
उसका मेन थीम क्या है बताओ? मूवी तो देखा है आपने, मेन थीम क्या था? या सिर्फ एंटरटेनमेंट करके आगे बाहर? बोलो 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 बोलो, किसको याद है? उसमें ऐसे बताया गया है कि बिल्ड अप योर कैपेसिटी, है ना, अपनी औकात बनाओ, ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, है ना। लास्ट में भी वो कौन था, वो उनका फनी फ्रेंड, ही कम्स रनिंग बिहाइंड देम। हाँ सम, नहीं वायरस नहीं, द कॉम्पिटिटर ऑफ आमिर खान, सो ही इज रनिंग बिहाइंड इट, सो बिहाइंड हिम। सो आमिर खान ने क्या बताया है उसमें, अपनी कैपेबिलिटी बनाओ, अपनी कॉम्पिटेंस बनाओ। एक बार आप कॉम्पिटेंट बन जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। यस, सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। बट देन कॉम्पिटेंस इज नॉट एवरीथिंग. What about character? What about compassion? So that is also very, very important. A person may have competence, but he can be a terrorist. अब आप मुझे बताइए, जो WTCs मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA में जो हुआ था ना, एयर क्रैश हुआ था, वहां पे क्रैश किया गया था, तो उसके अंदर वो कौन था? टेररिस्ट था ना. But he had spent a lot of time in learning how to fly a plane, isn't it? To become a pilot, how much training is required? How much education is required? He was a competent person, a pilot. Lekin with his competence, what did he do? He killed many people, right? Many terrorists, they also know how to, hijack, how to make bombs. So, competence can also be devastating. Do you know there is a kidney stealing racket? आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? कुछ लोग हैं. तो जो किडनी स्टीलिंग रैकेट्स, मतलब पहले जमाने, हमारे जमाने में हम लोग जब ट्रेन से जाते थे तो पॉकेट मार होते थे. यू कम आउट ऑफ द ट्रेन, यू रियलाइज माय गॉड, समवन हैज टेकन माय बटुआ, माय वैलेट. लेकिन अब समय बदल गया है. अब क्या होता है, वन फाइन मॉर्निंग, अरे किडनी गायब. कैन यू इमेजिन? आजकल किडनीज गायब होने लगी है. तो ये जो किडनीज गायब करते हैं, ये कौन होते हैं? रोड साइड रोमियोस. दे आर MS सर्जन्स, डॉक्टर्स. एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. सो मच एनर्जी एंड सो मच ऑफ मनी, isn't it? And after that, and so much you have to study yourself. But after studying so much and becoming a doctor, what do? You steal kidneys of people and make them miserable. So they have competence, but what is lacking? What is lacking? किस चीज की कमी है उनमें? उनमें काबिलियत तो है, पैसों की कमी है. अब इतना किडनी स्टीलिंग करते हैं तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, लेकिन क्या वो समाज के लिए हितकारक है, पोषक है? तो उनमें क्या कमी है? इंटेलिजेंस नहीं होती तो वो किडनी स्टील कैसे कर सकते हैं? अब बताओ, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? कंपैशन. तालियां बजाओ. सो कंपैशन की कमी है, कैरेक्टर की कमी है. तो अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है होगा, आपके अगर कंपैशन नहीं होगा, आपके अंदर केवल कॉम्पिटेंस होगा, तो आप समाज के दुश्मन भी बन सकते हैं. और इसीलिए कैरेक्टर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ.
तो पहले के जमाने में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ यू लूज सम वेल्थ, नो प्रॉब्लम. इफ यू लूज योर हेल्थ, देयर इज सम प्रॉब्लम. बट इफ you lose your character, you have lost everything. But nowadays, if you lose your character, no problem. If you lose your health, then there is some problem. But if you lose your wealth, everything is lost. So this is also one of the principles which people are following. So it is good or bad principle? Bad principle. Good. So therefore, you should know what is right and you should know what is wrong. So how do we know what is right and what is wrong? People don't know what is right and what is wrong. ऐसा होता है आजकल. जो अच्छा है उसको बुरा कहते हैं, जो बुरा है उसको अच्छा कहते हैं. होता है ना हमारे साथ भी. हाँ, कभी कभी मम्मी कहती है कितना देर वो मोबाइल देखोगे, रख दो उस मोबाइल को. होता है ऐसे, होता है. So sometimes we feel that of course mobile is so good. Google Guru, उसमें सब कुछ मिल सकता है. Whatever information you want, you can have it in the mobile. Yes, that's fine, that's right also. But too much of everything or anything is also hazardous. हम लोग जब एनडीए में थे ना, तो हमको पनिशमेंट क्या था मन में? एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी. आई वाज इन द एयरफोर्स फॉर 3 years. सो वहां पे अगर आपने कुछ गलती की और आपको बहुत भूख लगी है, तो वहां पे वो कहते थे द सीनियर वुड कम एंड से स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर. सर पियो. यहां पर भूख लगी है और आप पानी पर पानी पिए जा रहे हो. और फिर 10 ग्लास पीने के बाद क्या होता है? ऑलरेडी यू आर फुल. You puke everything out. You vomit out everything. So this was the one of the this thing. One of the punishments that was given. तो वैसे ही I missed the point I was trying to make. Anyways, so competence के साथ साथ character is also very very important and compassion is also important. So we have to develop this. How do we do this? We should know what exactly the competence अगर हमको बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना है. तो competence are of 5 layers. Okay, there are 5 dimensions of competence. The first dimension is physical. So physical means our physical body should be strong. निरामय होनी चाहिए, उसमें लोच होना चाहिए, उसमें शक्ति होनी चाहिए. तो वो कैसे होगा? फिजिकली स्ट्रांग. हाउ विल यू बी फिजिकली स्ट्रांग? एक्सरसाइज, वेरी गुड. न्यूट्रिशन, यू शुड बी ईटिंग प्रॉपरली. आहार सात्विक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. आजकल का कल्चर क्या है? वड़ा पाव एंड कोको कोला. राइट, बहुत सारे लोग खाते हैं. तो ऐसे कल्चर में अगर हम जिएंगे तो क्या हमारे अंदर शक्ति रहेगी? नहीं होगी शक्ति. यू हैव टू बी वेरी साइंटिफिक अबाउट एवरीथिंग. वॉट एवर यू ईट, व्हेन यू स्लीप. व्हेन डू वी स्लीप? व्हेन डू यू स्लीप? 10:30. ओके. No, 10:30 or 12. Okay. So what is the right time of sleeping? Very good. Between 9 and 12 ऐसे कहा गया है that time is the mode of ignorance is prominent in that time. मतलब तामसिक होता है. तो सत्व, रज, तम ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं. और इस प्रकृति में in this nature everything is influenced by these 3 modes of material nature. तो ये जो प्रकृति है उसके 3 गुण होते हैं. तो सब कुछ 3 गुणों में व्याप्त है. आप आहार करते हो तो वो भी सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है. आप जब सोते हो तो सोने का जो समय है वो तामसिक होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छी नींद मिलेगी.
So between 9 and 12, that span comes in tamogun. So the best activity that you can do is sleep. You will get the best out of that tamasic gun. तो उस समय में अगर आप सोगे तो आपको 1 घंटे में 2 घंटे की स्लीप मिलेगी, और फिर 12 के बाद from 12 to 3 if you sleep you will get 1 hour sleep in 1 hour. मतलब 1 घंटे में आपको 1 घंटे की स्लीप मिलेगी. लेकिन 9 से 12 के बीच में अगर आप सोते हो तो आपको 1 घंटे में कितने घंटे की स्लीप मिलेगी? 2 घंटे की. तो मतलब 9 से 12 बजे तक आप सोगे तो कितने घंटे की स्लीप हो जाती है आपकी? 8 घंटे 6 घंटे की. 3 into 2. So if you sleep between 9 and 12 you get 6 hours sleep. Plus after that 12 के बाद 1, 2, 3 और 3 घंटे सो लो तो कितने हो गए? 6 plus 3, 9 hours sleep in just 6 hours. And you get up at 3 o'clock, suppose you are fresh. क्योंकि 9 घंटे की स्लीप मिलने के बाद you become so fresh, isn't it? तो वैसे हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए. लोग बुद्धिमानी से काम नहीं लेते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं. तो जब हम दिल से सोचते हैं तो क्या? दिल है कि मानता नहीं. तो फिर हम कहते हैं नहीं थोड़ा और एक गेम खेल लूं, नहीं थोड़ा और एक YouTube चैनल देख लूं, थोड़ा और एक टीवी सीरियल देख लूं. ये दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज वी आर थिंकिंग बाय आवर माइंड, नॉट बाय आवर इंटेलिजेंस. So there is always a tussle between mind and intelligence. 2 कुत्ते हैं, ठीक है, और दोनों झगड़ रहे हैं. कौन जीतेगा? अच्छा वाला या बुरा वाला? अच्छा वाला जीतेगा. क्यों? बुरा भी जीत सकता है, राइट? बुरा जीतेगा, अच्छा जीतेगा? नहीं, एक का अगर चयन करना तो कौन जीतेगा? अच्छा वाला ही जीतेगा. ओके, वाई अच्छा? ऐसा नहीं हो सकता है. क्योंकि वो सही है. सही है तो क्या हुआ? ताकतवर तो ताकतवान नहीं है. लेकिन जीतेगा वो जिसे आप खाना रेगुलरली खिलाएंगे. जिसे आप रेगुलरली खाना खिलाएंगे वो मोटा होता जाएगा और दूसरे को दबोच के डिफीट कर देगा, हरा देगा. तो जीतेगा वो जो समय पर खाएगा. तो अगर हम मन की ज्यादा सोच रहे हैं, मन को खिला रहे हैं, बुद्धि को नहीं, तो कौन जीतेगा? मन जीतेगा. और अगर हम बुद्धि को खिला रहे हैं, उसको ताकतवर बना रहे हैं, तो फिर कौन जीतेगा? बुद्धि जीतेगी. तो मन को ज्यादा खिलाना चाहिए या बुद्धि को ज्यादा खिलाना चाहिए? वेरी गुड. So all of you are a very intelligent children. You know what to give preference to. तो हमें सही क्या है, गलत क्या है, उसको हमें अच्छी तरह से. तो इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो मुझे एक आपको कथा बताने की इच्छा हो रही है. There were 2 woodcutters. Okay? लकड़हारे जानते हो ना, woodcutters. So there was one woodcutter who would continuously keep on cutting for 8 hours. और एक woodcutter जो था वो 1 घंटा कट करता था, फिर 1 घंटा नहीं करता था, फिर 1 घंटा कट करता था, फिर 1 घंटा बैठ जाता था, फिर 1 घंटा. मतलब ऐसे वो कितने घंटे कर रहा है काम? 4 घंटे काम कर रहा है. तो किसके ज्यादा कटके होंगे? जो 8 घंटा कटता है, सब ऑल आर इन 1 पेज, या जो 4 घंटे काटता है वो? जो 4 घंटे काटता है वो ज्यादा कटे. कैसे? नहीं, स्ट्रेंथ तो दोनों में, स्ट्रेंथ तो सेम ही है. कैसे? दिमाग से कैसे? 8 घंटा, ये तो 8 घंटा कर रहा है भाई, ज्यादा समय बिता रहा है.
हाँ, ये भी कहाँ थक रहा है, ये तो 8 घंटा खाट 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 काट रहा है बराबर। तो भी जो 4 घंटा काटता है उसकी ज्यादा लकड़ी कटती है। बताओ कैसे? अ पजल, अ रिडल टू यू। एनीवन कैन पार्टिसिपेट। वो आराम करता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, उसके लिए वापस उतनी स्ट्रेंथ आ जाती तो है। आराम है हराम। ये नारा नहीं लगा ना। तो दैट इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि वो आराम करता है इसलिए ज्यादा काटता है। आराम करके कोई ज्यादा नहीं काट सकता है। द क्रक्स ऑफ द की ऑफ द होल थिंग इज, जब ये 1 घंटा काटता है तब 1 घंटे में, दूसरे 1 घंटे में वो क्या करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस 1 घंटे में वो अपने जो एक्स है ना, कुल्हाड़ी, उसको धार लगाता है। तब उसकी जब कुल्हाड़ी जो है वो एकदम तेज हो जाती है, और फिर वो 1 घंटा खाट 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 फटाफट सब लकड़ियां कट जाती है, और फिर बाद में अगेन इट बिकम्स ब्लंट अगेन, और 1 घंटा वो और उसको शार्प बनाता है, और इस प्रकार से हिज एफिशिएंसी इंक्रीजेस वंडरफुली। तो वो 4 घंटा ही काम करेगा, लेकिन ही गिव्स स्पेशल टाइम to make his axe sharper. So in the same way, all of you students जो यहाँ पर माता जी के यहाँ पर आते हैं, she is your most important well wisher. She just doesn't want you to learn and you know, हम लोग मराठी में बोलते हैं भोका आणि ओका। भोकम पट्टी मतलब रटो, बस रटो, रटते रहो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 7 और फिर वहां पे लिखो। लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑल्सो नो द पर्पस ऑफ एजुकेशन। वाई एम आई गेटिंग एजुकेटेड? वॉट इज द पर्पस? वॉट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? आप पढ़ाई कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? ओके, वेरी गुड। To become a businessman, you to create a future. What is that future? What are you seeing in future? You can't see. So मुझे पापा मम्मी ने कहा है जाओ, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, right? Good, you're honest. Yes, why are you? Become something, but it is still vague, right? Okay, but you want to become something. That's a good thing. So the purpose of education is only one thing. There is no other purpose. People think that education का जो purpose है, it is job, package, money. But yes, that is not the end. That is just the means. वो achieve करना है, लेकिन वो अंत नहीं है। ठीक है? Through education, we must achieve happiness. If you are not happy, then is it success? लेकिन ऐसे कैसे कह रहे हैं सर आप? अगर हम करोड़पति बन जाएंगे तो क्या हम हैप्पी नहीं होंगे? होंगे। Not necessary. Not necessary. अगर हम मार्क्स लेके आएंगे पूरे के पूरे तो we will be happy, isn't it? Not necessary. Again, not necessary. There are some people who come second and they try to commit suicide. How did I come second? ऐसा भी होता है। तो मतलब their IQ is very good, but their EQ, emotional quotient, is very low. They don't know how to take things in life. It's not what you get in life, but how you receive it that makes you happy. So your teacher wants you to have a spiritual perspective over the problems in your life. अभी तो हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, तो क्या हुआ अगर पढ़ाई में थोड़े कच्चे हैं? बट बहुत प्यारे बच्चे हैं, and therefore we should
be ready, we should be competent from all the 5 koshas. So the first we talked about was physical. We should be physically fit. Then the second comes physiological competence. So what is physiological competence? हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, हमारे अंदर स्किल होना चाहिए. वी शुड नो ऑल द स्किल्स. साइकिल चलाने को आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, कीला कैसे ठोकता है आना चाहिए, चपाती बनाने को आना चाहिए. कितने लोगों को आता है चपाती बनाने को? वाओ, व्हाट्स योर गुड नेम? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अलग बनानी आती है, गोल नहीं. लेकिन आती है. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. यू ऑल्सो नो. आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. आपके घर पे आऊंगा लेकिन ना मैं आई विल बी टेस्टिंग यू. आती है कि नहीं आती है? और छौंक लगाने को किसको आता है? सब्जी बनाने को आता है किसी को? तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मम्मी ससुरा मैके चली गई तो एवरीवन इज पैरालाइज्ड. अब क्या खाएं? बालाजी होटल को फोन करो. तो ऐसे भी हो सकता है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड बी एक्सपर्ट. हमें निपुण होना चाहिए हर स्किल में. वी शुड नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स? अरे वाह. इनको तो सब आता है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्वीप? Wow, very good. How many of you all know how to mop the floor? कभी किया ही नहीं है. पोछा कैसे मारने का मालूम ही नहीं है. Very good, very good. So you should be proud of doing all these things because it is a competence. How many of you all know how to play harmonium? How many of you all know how to play tabla? Really? Good. How many of you all know how to polish your shoes, your own shoes? Good. How many of you all know how to massage? कोई माता पिता के पैर दबाता है क्या? अरे वाह, आप तो सुपर हीरो हो गए. आमिर खान अभी आया है. नहीं, मुझे तो डाउट आ रहा है. मैं आपके घर पे आके आपकी चपाती तो जरूर खाऊंगा. Okay. So very good. I am very happy. So this is the second competence, that is physiological competence. That is, we should have skills and talents. गाना गाना आना चाहिए, ड्रामेटिक्स आना चाहिए, बात कैसे करनी है लोगों के साथ वो आना चाहिए. फिर हमें बाजार में सब्जी कैसे खरीदनी है आना चाहिए. दैट इज अ स्किल. कोई हमें फंसाना नहीं चाहिए. कोई हमको आम खाना है तो हम गए, कोई भी ऐसे ही सड़े आम दे दिया, हम लेके आ गए. और मम्मी कहती है कैसे आम लेके आए? मुझे नहीं समझ में आया. हमें स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए हमारे अंदर, है कि नहीं? तो हम ऐसे लल्लू नहीं होने चाहिए, पप्पू नहीं होने चाहिए. So that is the second type of competence, and that is having skill. गुड, वेरी गुड. मैं जब तुम्हारी उम्र का था मुझे नहीं आती थी. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड, वेरी गुड. स्विमिंग आती है? अरे कुछ तो बताओ जो नहीं आता है यार. ठीक है. थर्ड कॉम्पिटेंस इज द साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस. साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल. वी शुड हैव सेंसिटिविटी. सेंसिटिव मतलब संवेदनशीलता. लोगों के साथ कैसे बात करें जिससे उन्हें प्रसन्नता हो. बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, हमारे बराबर के जो है उनके साथ कैसे बातें करनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ मेंटल कॉम्पिटेंस. कुछ लोग थोड़ा कुछ हो गया तो मुंह से गाली निकाल देते हैं. दे आर वेरी वीक. दे डोंट हैव लिटिल बिट ऑफ संयम, पेशेंस. थोड़ा कुछ हो गया मुंह से गाली आ गई. ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसमें वो प्राउड फील करते हैं. बट दे आर द मोस्ट वीकेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द लॉट.
तो वी शुड हैव सेंसिटिविटी हाउ टू स्पीक विथ पीपल, हाउ टू प्लीज पीपल बाय आवर एक्शंस. तो हमारे अंदर स्वाद संयम होना चाहिए. जो परोसा गया उसको चुपचाप खाओ. मुझे ये करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये नहीं चलेगा. मतलब आप मन से आप सहन नहीं कर सकते हो. जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, निरामय शरीर के लिए अच्छा है वो आपको परोसा गया है. बस उसका जो स्वाद है वो थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन इसीलिए आप नहीं खा रहे हो. तो मतलब आप, आर यू थिंकिंग विथ योर हेड और विथ योर माइंड? यू आर थिंकिंग विथ योर माइंड. इफ यू आर नॉट ईटिंग दैट, तो हमें जैसे परोसा गया तो स्वाद संयम होना चाहिए. फिर क्या होना चाहिए? समय संयम होना चाहिए. वी शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. और फिर क्या होना चाहिए? आज्ञा पालन. फिर हार की स्वीकार करने को आना चाहिए. वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट. वो सब मेंटल कॉम्पिटेंस है. तो ये आपके अंदर होना चाहिए. देन फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, कॉन्साइंस कॉम्पिटेंस. मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये हमको मालूम चाहिए कि नहीं चाहिए? मालूम होना चाहिए कि नहीं? मेरा कौन हीरो होना चाहिए, कौन नहीं. That also shows your intellectual competence, right? So we should know who is the right hero. A right hero is not just who looks nicely or who acts nicely. Anyone can act nicely, है ना? थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे तो कोई भी कर ले. लेकिन to see the character, that is something. To see a person who is compassionate, who can sacrifice for others, who is in a service mood, who loves his country, who loves his parents, who loves his society. Such a person is a conscience competent person. You know, that shows his conscience indicator. And the last, जो पांचवा competence है, वो है आनंदमय कोश, यानी his individual determinant. What is he? उसका वजूद क्या है? What is he? कौन है वो? That is determined by that person through his behavior, through his actions, through his words, and how he expresses gratefulness to others. That person should be grateful. So, a complete man is not he who wears a Raymond suit. A complete man is healthy, skillful, sensitive, conscientious and grateful. ऐसे बालक सर्वोत्तम बालक होते हैं. They are complete person. So that is the competence that we should have. I want to thank you for watching this video. This video is a part of the lecture series I conduct. I have been on a mission for the last 24 years to help 1 million families build powerful and meaningful bonds. And I frequently give lectures keeping this as my goal. So if you want me to speak at your college or event, you can email me at this address. Also, I am expanding my mission with YouTube. I have something special to offer to you. I am giving away counseling sessions to 3 people per week for free. All you have to do is first subscribe to our channel and comment what's the realization you got from this video. Second, join our private WhatsApp group where you can get connected to me. And finally, fill out the form to enter your chance to win your free counseling session. All links are in the description below. See you next time.